Next, the gold standard treatment for bilateral TMJ ankylosis in an adult patient is what? तो आंसर इज कस्टम टोटल TMJ रिप्लेसमेंट जो है हमारे पास, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. The most predictable treatment for management of TMJ ankylosis in adult patient with or without facial asymmetry with custom-made alloplastic TMJ replacement with or without orthognathic surgery and fat grafting around the tissue. ठीक है. The most predictable treatment for one of the TMJ ankylosing patient is सबसे पहले the release of ankylosing joint, then the removal of heterotropic and reactive bone through debridement of the TMJ and adjacent areas, then reconstruction of TMJ, and if indicated, advance the mandible with custom fitted total joint prosthesis. Then coronoidectomy और coronoidectomies, मतलब दोनों साइड कर सकते हैं या यूनिलेटरल कर सकते हैं. If the ramus is significantly advanced or vertically lengthened with the prosthesis, then coronoidectomy is needed to be done. ठीक है. उसके बाद autogenous fat graft, so as to prevent formation of reactive bone around the new prosthesis. ठीक है. From abdomen or buttock, it is harvested and packed around the prosthesis in the TMJ area. Additional orthognathic surgery, if indicated, is needed in these cases. It is absolutely necessary that fat grafts are to be packed around the articulating parts of the prosthesis so as to prevent the reoccurrence of heterotropic bone and reactive bone formation, as well as to minimize the fibrosis in the joint area. Clear? Next, the correct needle position for inferior alveolar nerve block is which one? ठीक है. Inferior alveolar nerve block के लिए हमारे पास आंसर है B. देखो, if you have attempted clinical cases, then you know that this one is PSA. ठीक. This is inferior alveolar nerve block. This is greater palatine. और जो ये है हमारे पास, ये मेंटल नर्व ब्लॉक देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत आगे दिख रहा है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिवाइस शोन इन द इमेज. तो ये हमारे पास है एक्सटर्नल मैंडिबुलर alveolar distractor. This device is external mandibular और alveolar distractor. अगर विदाउट द मैंडिबल इसे देखें तो इसमें हमारे पास सेल्फ ड्रिलिंग पेन्स होती हैं. ठीक है. मल्टीवेक्टर पेन्स होती हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं. ठीक. दूसरी आती है ऑप्टिमाइज थ्रेड डिज़ाइन टू दैट मे रिड्यूस द टिश्यू बाइंडिंग. तीसरा आता है डिस्ट्रैक्शन आर्म विद 20 to 25 और 35 mm लेंथ. ठीक है. ये अवेलेबल होती है. ये इस साइड को डिस्ट्रैक्शन करता है, ये इस साइड को डिस्ट्रैक्शन करता है. ये एंगुलर मूवमेंट के लिए हमारे पास. ठीक. ये ट्रांसवर्स मूवमेंट के लिए, मतलब हर एक मूवमेंट करवा ले रहा है. एंगुलर भी करवा ले रहा है, ट्रांसवर्स भी करवा ले रहा है, लीनियर डिस्ट्रैक्शन भी करवा ले रहा है. दिस इज एन इमेज ऑफ एक्सटर्नल मैंडिबुलर डिस्ट्रैक्टर दैट कैन डिस्ट्रैक्ट द कैलस इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियो लेटरल एंड सुपीरियर इंफीरियर. ठीक है. इसीलिए इसको मल्टीवेक्टर डिस्ट्रैक्टर भी बोला जाता है. ये जो फर्स्ट इमेज है हमारे पास, दिस इज अ इंटरनल मैंडिबुलर alveolar distractor. It is a small intraoral device that is used to vertically augment the height of mandibular or maxillary alveolar processes or alveolus. ठीक है. Rarely it is used in maxilla to close the alveolar defects, but in mandible it can be used. If it is used in maxilla, then this is the example. ये ऊपर हमारे पास पूरा इसको नट्स के साथ कसा हुआ है. ये हमारे पास डिस्ट्रैक्टर है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे को बात आती है कि रिजिड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर. दिस इज रिजिड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर. RED और रिजिड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर इज यूज फॉर मिड फेस और मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन. सपोर्ट इज टेकन फ्रॉम द पिन्स इनटू द क्रेनियम. यहाँ से पिन जो है ये क्रेनियम पे होल्ड करके इनको सील कर दिया जाता है, इसके साथ टाइट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दोज थ्रेड्स. ऑलराइट. नाउ सपोर्ट इज टेकन फ्रॉम द पिन्स इनटू द क्रेनियम और टेम्पोरल बोन एंड मिड फेस इज डिस्ट्रैक्टेड. मिड फेस इज डिस्ट्रैक्टेड यूजिंग द मैक्सिलरी टीथ. मैक्सिलरी टीथ पे एक फोर्स लगेगी जिससे मिड फेस को हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. लास्ट इज लीनियर डिस्ट्रैक्शन. इट इज़ अ सिंपल डिवाइस फॉर डिस्ट्रैक्शन इन ओनली अ सिंगल डायरेक्शन. जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे डिस्ट्रैक्शन कर सकता है. मतलब इन दोनों पार्ट सेगमेंट्स को एक ही लेंथ में डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, दूर ले जा सकता है. That is why it is known as a linear distractor. Alright. Next, features of bilateral TMJ ankylosis include all except. क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं हमारे पास? रेट्रोग्नाथिक मैंडिबल हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, इलोंगेटेड कोरोनॉइड प्रोसेस की वजह से हमारे पास डेविएशन आ सकती है. ठीक है. डेविएशन ऑफ द मैंडिबल टूवर्ड्स द चिन जो है वो यूजुअल डिफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि डेविएशन के लिए हमारे पास एक साइड की जो है वही इलोंगेट या उसी में दिक्कत आनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे बताया गया हमारे पास बायलेटरल TMJ एंकाइलोसिस. ठीक है.
ठीक है, द वर्ड इज बायलेटरल, सो डेविएशन ऑफ द चिन विल नॉट बी देयर, तो डेविएशन वाला आंसर जो है हमारे पास गलत है. द डेविएशन ऑफ द चिन, इट इज यूजुअली सीन इन केसेस ऑफ यूनिलेटरल एंकाइलोसिस where the chin deviates to the defect side due to the cessation of the growth in the defect side. In bilateral TMJ ankylosis, there is a failure of growth on both the sides, hence causing retrognathia. Maintaining the chin midline, chin की midline maintained रहती है. Features of long-standing TMJ ankylosis include, first unilateral की बात करते हैं. Unilateral में there is deviation of chin of the mandible towards the side of the defect. Side of the defect की side जाती है, साइड ऑफ डिफेक्ट की साइड डेविएशन होती है, बट इट इज़ फॉर यूनिलेटरल. हमारे पास क्वेश्चन में दिया बायलेटरल. एक और यूनिलेटरल का कैरेक्टर है यूनिलेटरल वर्टिकल डेफिशिएंसी ऑफ वन साइड ऑफ द डिफेक्ट. अगर यूनिलेटरल है तो वर्टिकल डेफिशिएंसी हो जाती है एक साइड की. बायलेटरल में हमारे पास आता है रेट्रोग्राथिक मैंडिबल विद शॉर्ट रेमस एंड स्मॉल बॉडी. माइक्रोजीनिया विच इटसेल्फ मीन्स स्मॉल चिन. माइक्रो मतलब स्मॉल, जीनिया का मतलब होता है चिन. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस अगर हमारी मैंडिबल छोटी है, चिन छोटी रह गई है, तो देयर विल बी ए कन्वेक्स प्रोफाइल, राइट. द इंक्रीज हायोमेंटल डिस्टेंस विद टाइट सुप्राहायोइड मस्कुलेचर. हायोमेंटल डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हायोइड बोन से लेकर जो चिन का एंड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि चिन छोटी रह गई है. एंड देयर विल बी टाइट सुप्राहायोइड मस्कुलेचर. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी एन ऑब्ट्यूज सर्वाइकोमेंटल एंगल. मतलब जो सर्वाइकल पोर्शन है नेक का और मेंटल पोर्शन जो है मैंडिबल का, उसके बीच का एंगल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. देयर विल बी अ लार्जर नेज़ोलेबियल एंगल, क्योंकि हमारी जो चिन है वो ऐसे है, तो लिप ऐसे आएगा एंड देन नोज़ विल बी ऐसे, तो ये नेज़ोलेबियल एंगल जो है वो लार्ज हो जाएगा, राइट. देन देयर विल बी अ बर्ड फेस डिफॉर्मिटी, जैसा सुनियो दिखता है, वॉलगैलजेसिट्स. एंडीगम डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं इसको. वॉलगैलजेसिट या फिर एंडीगम डिफॉर्मिटी को हम बर्ड फेस डिफॉर्मिटी बोलते हैं. मतलब ऐसा ऐसा उसका मुंह हो जाएगा बर्ड फेस डिफॉर्मिटी में. ठीक है, गम्प डिफॉर्मिटी या फिर उसको वॉलजेजिस्ट डिफॉर्मिटी भी बोल रहे हैं. प्रोमिनेंट एंटीगोनियल एंगल हो जाएगा. एंटीगोनियल नॉच का जो एंगल है दैट विल बी प्रोमिनेंट. ठीक, मार्क्ड एलोंगेटेड कॉर्नोइड प्रोसेस विल बी देयर. Obstructive sleep apnea in some cases will be there. Oral features. Oral features में occlusal cant और occlusal का जो ये हमारे पास एंगल होता है, there will be deviation of maxillary and mandibular midlines towards the affected side. ठीक है, there will be deviation of the midline of maxilla and mandible towards the affected side. Generally class 2 malocclusion may be seen and कभी कभार class 1 malocclusion के साथ भी patient present कर सकता है. There will be a posterior crossbite. There will be a deviation towards affected side on opening. In unilateral, there could be trismus. Trismus could be there. ठीक है. In bilateral TMJ ankylosis, an anterior open bite is usually seen in the patients. ठीक. Severe oral hygiene maintenance problems are there, which leads to caries and periodontal problems in these bilateral TMJ ankylosis patients. Next, you have a 9-year-old patient. ठीक है, जो कि फॉल की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करता है. इंजरी टू द चिन हुई है. नाउ ही हैज़ लिमिटेशन इन माउथ ओपनिंग एंड पेन वाइल माउथ ओपनिंग. ठीक, नाउ रेडियोग्राफ शोज अ क्रैक एट द मेंटल फोरामेन. आइडियल ट्रीटमेंट वुड बी व्हाट. ठीक है, मेंटल फोरामेन से टूट गई है हमारे पास, जो पैरासिम्फाइसिस वाला रीजन होता है वहाँ से टूट गई है मैंडिबल. सो व्हाट शुड बी द आइडियल ट्रीटमेंट. आइडियल ट्रीटमेंट शुड बी ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन विद मिनी प्लेट्स एट द पैरासिम्फाइसिस रीजन जहाँ पे हमारे पास ट्रॉमा हुआ है, और बॉडी रीजन जहाँ पे भी ट्रॉमा हुआ है, एंड फिजियोथेरेपी. एग्रेसिव फिजियोथेरेपी शुड बी एडवाइज्ड. पेन एंड डिफिकल्टी इन माउथ ओपनिंग इंडिकेट्स ईदर फ्रैक्चर और इंजरी टू द TMJ. ठीक, नाउ क्रैक एट मेंटल फोरामेन indicated the body fracture of the mandible. Since there is no mention about occlusion, we assume that it is maintained. क्योंकि occlusion के लिए कोई मेंशन नहीं किया गया सवाल में, तो हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि occlusion ठीक है. The aim is to stabilize the bone, mobile bone, and aim is to prevent TMJ ankylosis. First, to stabilize the bone. हम stabilize कैसे करेंगे bone? We will stabilize the bony segments by allowing union and healing. That can be done by a simple Brady's wire or mini plates in the inferior border of the mandible region. These plates are removed after 6 months to prevent growth restriction of mandible and unerupted permanent tooth eruption in the region. Resorbable mini plates and screws can be used in this region. ठीक है, this was done to stabilize or potentially stabilize the bony fragments of the mandible, broken mandible. Second आता है TMJ ankylosis को prevent करना है. ठीक, only method in this age to prevent TMJ ankylosis is physiotherapy using
पेशेंट्स ओन मस्कुलेचर, एक्टिव फिजियोथेरेपी मतलब खाना चबाने को बोलेंगे, हार्ड फूड 6 महीने के बाद तक मतलब सेल्फ फोर्सफुल माउथ ओपनिंग करवाएगा वो बच्चा, खुद चबाने की प्रैक्टिस करेगा, च्युइंगम चबा सकता है बाय यूजिंग असिस्टेंस ऑफ पेरेंट्स, डिवाइसेस। पैसिव फिजियोथेरेपी में हमारे पास ट्रिस्मस स्क्रू आता है एंड माउथ कैप्स कैन बी गिवन। ट्रिस्मस स्क्रू एंड माउथ कैप्स हमारे पास पैसिव अप्लायंस है। नेक्स्ट नागपुर क्लासिफिकेशन क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज व्हाट? क्लेफ्ट लिप और पैलेट नागपुर क्लासिफिकेशन में ग्रुप 3 के अंदर आता है। नागपुर क्लासिफिकेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जिसमें सीवीआईटी के बेसिस पे हमने ग्रुप किया हुआ है इसको। फर्स्ट इज ग्रुप 1। ग्रुप 1 इज क्लेफ्ट ऑफ लिप। ग्रुप 1A के अंदर आता है हमारे पास क्लेफ्ट ऑफ लिप प्लस एल्वियोलस। ग्रुप 2 क्लेफ्ट ऑफ पैलेट अलोन, ठीक है। ग्रुप 2 में सिर्फ क्लेफ्ट ऑफ पैलेट आ रहा है। 1 में हमारे पास लिप आ रहा है, लिप के साथ एल्वियोलस आ सकता है 1A के अंदर। ग्रुप 2S आता है। ग्रुप 2S कि हमारे पास पैलेट के साथ सब म्यूकोस क्लेफ्ट भी है ऑफ द पैलेट। देयर इज अ सब म्यूकोस द क्लेफ्ट ऑफ द पैलेट एज वेल। ग्रुप 3 में हमारे पास सबसे सीवियर आता है, दैट इज क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। दिस इज नागपुर और इंडियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। दिस इज ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1A एल्वियोलस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो गया। ग्रुप 2 पे सिर्फ हमारा पैलेट गया, ठीक, और सब म्यूकोजा भी गए। ग्रुप 3 में हमारे सारे आ गए क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। In retromandibular transparated approach, the mandibular condyle fracture, which nerves are commonly damaged? So the answer is temporal, zygomatic, buccal and mandibular. Marginal mandibular आ सकती है लेकिन वो कम होती है, ठीक है। तो ये चारों हमारे पास डैमेज हो सकती है, 1, 2, 3, 4, ऑलराइट। टेम्पोरल, zygomatic, buccal and then this mandibular. Following the retromandibular approach, the mandibular condyle approaches can be in 2 ways. It could be anterior parotid transmesenteric approach and it could be transparotid approach. The transparotid approach is said to have greater chances of transient facial nerve palsy compared to transmesenteric or anterior parotid approach. ठीक है। According to Ellis, the marginal mandibular nerve was usually encountered prior to dissection of pterygomesenteric sling and needs retraction to prevent injury to the nerve. ठीक। According to recent study from AIIMS, New Delhi, the transient facial nerve palsy of temporal, zygomatic and buccal branches of facial nerve was seen, all of which recovered within 3 months of post-operative time. Clinically thinking, the buccal branch may be more affected due to the fact that the dissection is carried out in the superior medial direction. Dissection is carried out in the superior medial direction, मतलब ऊपर से medially जाते हैं, ठीक, towards the fracture condyle, and it involves removing or retraction of soft tissues, including the buccal branches of the superior and anterior direction. Hence, the option C, that is 1, 2, 3, 4, that is all the 1, 2, 3, 4 branches will be chosen because the buccal branch, अगर इन सब में से एक चूज करना है, then the buccal branch of the facial nerve appears to be the best answer. That means 3 is the best answer if 3 alone is given. The treatment for recurrent condylar dislocation with an excessive mouth opening of greater than 5 cm is done by which procedure? The answer is Daughtery's procedure, DAUTERY procedure. यहाँ पे condylar dislocation हमारे पास 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जा रहा है बार बार, ठीक है, तब हम Daughtery procedure करते हैं. That means there is a creation of hindrance in front of coronoid process that prevents excessive translation or excessive movement of condyle into the forward direction or anterior direction, and therefore subsequent dislocation can be prevented. Gossere's and Daughtery procedure aimed at green stick fracture of the zygomatic arch with fossa inset, all right, so that it can lead to a hindrance in front of the coronoid process, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्डाइल है वो आगे ट्रांसलेट या एंटीरियरली डिसलोकेट नहीं होगा. नेक्स्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, हेटेरोटोपिक बोन फॉर्मेशन इन TMJ एंकाइलोसिस ऑस्टियोआर्थरेक्टोमी इज प्रिवेंटेड बाय, आंसर इज इंडोमेथासिन, ठीक है. इंडोमेथासिन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन हिप एंड elbow arthroplasty so as to prevent the heterotrophic ossification. Indomethacin has been recently used in extended cases of TMJ ankylosis, especially in recurrent cases, so as to prevent the heterotrophic bone formation. लेकिन इसके साथ साथ हम फैट की ग्राफ्टिंग भी करते हैं ताकि हेटेरोटॉपिक बोन फॉर्मेशन के चांसेस और कम हो जाए.
Next, a 5-year-old child presents with a fall from height. He had pain in mid-face region and difficulty in turning one eye upward. ठीक है. There are no radiographic signs of fracture. This can be due to a trapdoor fracture. अगर वो आंख नहीं घुमा पा रहा ऊपर की जगह, ऊपर की साइड, तो this can be due to a trapdoor fracture. The 3 diagnostic signs of trapdoor fracture are: first is mechanical restriction of gaze, difficulty in looking any direction. किसी एक डायरेक्शन में देखना मुश्किल हो जाता है, ऊपर नीचे साइड, दूसरी साइड, इनमें देखना मुश्किल हो जाता है. Then there is a positive forced duction test. देखो, पॉजिटिव फोर्स डक्शन टेस्ट में एग्जामिनर जो है वो आईबॉल को ग्रास्प करता है विद द फोर्सेप्स. फोर्सेप आईज़ के लिए बने होते हैं और उनको मैनुअली मूव करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन जिस साइड वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है. पॉजिटिव टेस्ट में क्या होता है कि डक्शन टेस्ट की आई मूव नहीं कर पाएगी, पैसिवली मूव नहीं कर पाएगी. ठीक है, कोई ना कोई मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन उसमें शो होगा ही होगा. अगर ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर हो गया, इन्फीरियर रेक्टस फ्रैक्चर हो गई, स्कार टिश्यू बन गया है, तब ऐसी चीज़ें आती हैं. ठीक है, पॉजिटिव डक्शन टेस्ट का मतलब है कि कोई ना कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बन गई जिसकी वजह से आई उस साइड को मूव नहीं कर पा रही है. थर्ड डायग्नोस्टिक साइन इज CT एविडेंस ऑफ इनकार्सरेटेड inferior rectus muscle. Sometimes isolated linear fractures, typically coursing anterior posteriorly, आगे से पीछे की तरफ, can result in trapdoor effect in which the orbital tissues, soft tissues, for example inferior rectus muscle, वो pinch हो जाते हैं tightly between the bony segments. ठीक है, मतलब ऐसे bony segment है, ये बोनी सेगमेंट है, इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हुआ है, छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है. अब ये फ्रैक्चर ऐसा है कि ये मूवमेंट के दौरान हल्का सा खुल रहा है, जिसके बीच में हमारे पास जो ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जैसे इन्फीरियर रेक्टस मसल है, वो पिंच डाउन हो जा रहा है. ठीक है, हेंस अगर ये स्नैप, अब जब नॉर्मल आएगा तो ये स्नैप बैक कर जाता है अपनी पोजीशन पे, लेकिन जो टिश्यू इसके अंदर पिंच हो गया. ठीक है, इसलिए इसमें रेडियोग्राफिक साइंस बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते. दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर नेसेसिटेट्स द इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन सो एज टू प्रिवेंट द इस्चीमिक नेक्रोसिस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की नेक्रोसिस, क्योंकि वो पिंच डाउन है इसके अंदर, उसको बचाने के लिए उसकी सर्जरी करनी पड़ती है. ठीक है, ताकि परमानेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ गेज या डिप्लोपिया ना हो जाए. द ट्रैपडोर फ्रैक्चर इज फाउंड मोर कॉमनली इन यंगर पेशेंट्स लाइक अ चाइल्ड ड्यू टू ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ बोन. ठीक है, इट इज़ ट्रू एमरजेंसी दैट शुड बी ट्रीटेड विद इन द फ्यू आवर्स, ताकि गेज जो है वो पेशेंट की बनी रहे, रिस्ट्रिक्शन ना हो जाए आँखों की. नेक्स्ट, अ कंप्लीट डेंचर वेयरर कंप्लेन्स ऑफ चैटरिंग. व्हाट कुड बी द कॉज? अगर चैटरिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन हो गया. मतलब दांत अगर श ज ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलने में अगर टच कर जा रहे हैं तो चैटरिंग होती है हमारे पास. ठीक है, सो देयर इज इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन. लेट्स डिस्कस द कॉज अलॉन्ग विद द रिकॉग्नाइजिंग फॉर्म. ठीक है, फर्स्ट, नॉइज ऑन ईटिंग एंड स्पीकिंग. इट मे बी अपरेंट ऑन द फर्स्ट इंसर्शन ऑफ डेंचर or may appear as an alveolar resorption occurs and the denture get loosened. तब भी ऐसा हो सकता है. Unfamiliarity with the new appliance, but check the factors below. सबसे पहले चीज़ चेक करना है कि एक्सेसिव ऑक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन तो नहीं है, ऑक्लूजल इंटरफेरेंस, अनबैलेंस ऑक्लूजन तो नहीं है, या फिर ग्रेटर इंसाइजल ओवरलैप तो नहीं है, या फिर डेंचर लूज तो नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, स्पीच प्रॉब्लम्स. दीज आर अनकॉमन बट व्हेन दे प्रेजेंट दे कैन बी ऑफ ग्रेट कंसर्न टू द पेशेंट. ठीक है, systematic search for the cause is required as it may not be obvious. ठीक. नेक्स्ट इज अनफेमिलियरिटी विद द न्यू डेंचर. नया डेंचर पहना तो स्पीच प्रॉब्लम आ सकती है, आदत नहीं है. इफ़ पॉसिबल चेक दैट नो प्रॉब्लम विद द ओल्ड डेंचर वॉज देयर और वॉज देयर एनी प्रॉब्लम विद द ओल्ड डेंचर. ठीक. नेक्स्ट इज सिबिलियंट्स. सिबिलियंट्स जैसे श, ऐसे साउंड्स. ठीक. काउंट फ्रॉम 60 to 70. अपर एंड लोअर इंसाइजर टीथ शुड जस्ट नॉट कॉन्टैक्ट, मतलब एक दूसरे के पास आने चाहिए पर कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए. इफ़ द कॉन्टैक्ट अकर्स चेक फॉर एक्सेसिव ऑक्लूसिव वर्टिकल डायमेंशन और वर्टिकल इंसाइजर ओवरलैप. अलॉन्ग विद दिस चेक द पैलेटल कॉन्टूर्स. ओके, चेक बाय अप्लाइंग अ प्रेशर इंडिकेटिंग क्रीम. ठीक है, उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि 60 से 70 की गिनती करो. व्हेन एक्सेसिव टंग कॉन्टैक्ट इज देयर विद द डेंचर, रिमूव एक्राइलिक and make it a little bit thinner. Where there is lack of contact and add wax and recheck the contact. ठीक है, मतलब हमें palatal contour को ढंग से चेक करना है कि वो ज़्यादा मोटा तो नहीं. Next, the function of indirect retainer is to prevent the rotation of denture along in which axis. देखो, it is to prevent the rotation about an axis through the posterior most abutment.
सबसे ज़्यादा पिछला अबटमेंट जो होता है उस पे हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन की एक्सेस बनती है, तो वहाँ पे रोटेशन नहीं होनी चाहिए। Now, when the distal extension of the denture base is dislodged from its basal seat, it tends to rotate along the fulcrum line. ठीक है, theoretically this movement away from the tissues can be resisted by activation of direct retainer, मतलब हमारा जो क्लास वगैरह इसको एक्टिवेट करके stabilizing the components of clasp assembly and indirect retainers, which are rigid components of the partial denture framework, which are located on definite rest on the opposite side of the fulcrum line. देखो, अगर ये हमारे पास डेंचर है तो अगर हमारी फोर्स यहाँ पे लग रही है इसके ऊपर, तो ये यहाँ से जो है वो उठना स्टार्ट कर जाएगा, पीछे से उठना स्टार्ट कर जाएगा, बिकॉज फल्क्रम लाइन का जो आर्क है वो पीछे की तरफ बन रहा है। तो इसमें हम क्लास्प को एडजस्ट करते हैं, प्लस जो ऑक्लूजल रेस्ट है हमारा उसको एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है फल्क्रम लाइंस की। फल्क्रम लाइंस आर द वेरियस टाइप ऑफ पार्शली एडेंचुलस आर्चेस अराउंड विच द डेंचर मे रोटेट व्हेन बेसेस आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस डायरेक्टेड अवे और टूवर्ड्स द रेजिडुअल रिजेस। मतलब ये एक फंक्शनल लाइन बन जाती है, ये फल्क्रम लाइन बन जाती है जो एक आर्क बना देती है जिसके अराउंड डेंचर रोटेट करता है। ठीक है, तो ओवरऑल यही चीज़ है हमारे पास कि जो फल्क्रम लाइन है दैट शुड बी प्लेस्ड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द डिस्टल एक्सटेंशन बेस। ठीक है, विच प्रोवाइड्स द बेस्ट लेवरेज एंड एडवांटेज अगेंस्ट डिसलॉजमेंट। फल्क्रम लाइन शुड बी कंसिडर्ड एज द एक्सिस in which the denture will rotate when the base will move away from the residual ridge. ठीक है, तो फल्क्रम लाइन के बेसिस पर ही हमें सारे रिटेनर्स देने होते हैं। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हमारी सीटिंग कैसी हो रही है वो सब फल्क्रम लाइन डिसाइड करती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैनेडी क्लासिफिकेशन आफ्टर अप्लाइंग एप्पलगेट रूल्स। ठीक है, तो हमारे पास पोस्टीरियरली दांत हैं दोनों साइड। ठीक है, एंटीरियरली दिस इज मिसिंग, सो दिस इज कैनेडी क्लास 4। देखो, कैनेडी में सिंपल सा तरीका होता है, अगर बायलेटरली पोस्टीरियर मिसिंग है तो कैनेडी क्लास 1, यूनिलेटरली पोस्टीरियर मिसिंग है देन कैनेडी क्लास 2। अगर बीच में कोई मिसिंग है, पीछे भी दांत प्रेजेंट है, आगे भी दांत प्रेजेंट है, बीच में कहीं कुछ मिसिंग है देन दैट इज़ क्लास 3, बट बीच वाला शुड नॉट क्रॉस द मिड लाइन। ठीक है, और अगर ये क्लास मतलब मिड लाइन क्रॉस कर रहा है देन इट विल गो कैनेडी क्लास 4। मॉड का क्या तरीका होता है कि ये हमारे पास दांत है, ये मिसिंग है, फिर ये दांत है, फिर ये मिसिंग है, फिर ये दांत है, फिर ये मिसिंग है। तो हम कोई दो को पकड़ के या फिर किसी जो हमारी क्लास बन रही है मोस्ट पोस्टीरियर दांत है उसको देख के जो हमारी क्लास बन रही है उसको हम क्लास लिख देते हैं। फिर जितने हमारे मिसिंग आ जाते हैं दैट विल बी मॉड, और जितने मिसिंग 1 2 3 जितना भी है वो उसमें लिख दिया जाता है। बेसिकली हम नंबर ऑफ स्पेसेस गिन रहे हैं, नंबर ऑफ दांत नहीं, नंबर ऑफ स्पेसेस गिन रहे हैं। मोर प्रिसाइजली वी कैन से वी आर काउंटिंग द एडेंचुलस स्पेसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेसिंग इन आरपीडी? The function of bracing, BRACING, is to resist the horizontal forces from the tongue. ठीक है, देखो, ब्रेसिंग कैन बी डन बाय यूजिंग रिजिड नॉन फ्लेक्सिबल पार्ट्स ऑफ द क्लैस्प, जैसे कि क्लैस्प आर्म, रेसिप्रोकल आर्म वगैरह जो होती हैं, और एक ये आर्म जो है वो टूथ को अबव द सर्वे लाइन जो है टच कर रही होती हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रेसिंग। हम डेंचर बेस को यूज़ करके भी ब्रेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रॉपरली एक्सटेंडेड बेसिस बनाएं और रेस्ट के ऊपर जो टिश्यूज़ के ऊपर ढंग से बैठे ताकि साइडवेज मूवमेंट कम हो। हम माइनर करेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, माइनर कनेक्टर से भी ब्रेसिंग रुकती है जिससे कि लिटिल मूवमेंट कम होती है। हम वर्टिकल सरफेस ऑफ द टीथ को एज अ गाइडिंग प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि टंग प्रेशर के लिए हम ऐसी टीथ सेटिंग करें कि टंग प्रेशर कम से कम लगे। ठीक है, इन सभी फैक्टर से हमारे पास जो है वो साइडवेज सपोर्ट जो है आरपीडी को मिलता है और टंग के प्रेशर से उसको रिलीफ मिलता है, दैट इज़ नोन एज ब्रेसिंग। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो साइड टू साइड स्टेबिलिटी टू एन आरपीडी व्हेन इट इज़ गिवन, या फिर लेटरल स्टेबिलिटी जब हम डेंचर को दे रहे हैं, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ब्रेसिंग। दिस इज़ डन बिकॉज हमें आरपीडी को स्टेडी रखना है, बैलेंस रखना है जब भी टंग उसके ऊपर फोर्सेस लगाती है, क्योंकि टंग की फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं या फिर टॉक कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल इन अ क्लास 1 सिचुएशन वेयर द रेजिडुअल रिजेस हैव अंडरगॉन एक्सेसिव वर्टिकल रिजॉर्प्शन। यहाँ पे पूरी वर्टिकल रिजॉर्प्शन हो रखी है, इतनी फ्लैट रेजिडुअल रिजेस हैं कि अगर हम डेंचर देंगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल और लेटरली रोटेट होने की टेंडेंसीज रहेंगी, लेटरली मूव करने की टेंडेंसी रहेंगी। तो इसमें ब्रेसिंग इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हम ऑक्लूजल रेस्ट देंगे, हमारे पास रेसिप्रोकल क्लास असेंबली आएगी। ठीक है, प्रॉपर डेंचर बेस दिया जाएगा, प्रॉपर सीटिंग की जाएगी इसकी। ठीक है, एक्राइलिक को ढंग से मेंटेन किया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं दैट विल बी नोन एज ब्रेसिंग, ताकि हमारी लेटरल फोर्सेस कम से कम लगे और हमारी रोटेशनल टेंडेंसी कम से कम रहे।
Next, anterior condylar guidance is altered by which of the following? Anterior condylar guidance can be altered by changing the lingual incline of the upper incisors. ठीक, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज मैंडिबुलर गाइडेंस generated by condyle and articular disc by traversing through the contour of articular eminence. ठीक है, condylar guidance एक फिक्स्ड फैक्टर है, तो ये अनअल्टरेबल होता है हेल्दी पेशेंट के अंदर. अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारे पास शेप ऑफ ग्लिनोइड फोसा कैसी है. द वेरिएशन इन थिकनेस ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड द रिलेशन ऑफ कॉन्डाइल टू डिस्क मूवमेंट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ मैंडिबुलर प्रोट्रूजन दे ऑल्सो affect the condylar guidance. Condylar guidance is also at the angle at which the condyle moves away from the horizontal reference plane at is referred to as condylar guidance angle. ठीक है, मतलब जिस एंगल पे जो condyle है वो मूव करता है इन horizontal plane, उसको भी हम condylar guidance angle बोलते हैं. The two TMJs provide guidance for posterior portion of the mandible and they are largely responsible for determining the character of the posterior mandible, referred to as posterior guidance, controlling the mandibular movement. Anterior guidance or controlling factor for anterior guidance is the influence of contacting surface of anterior teeth. Anterior guidance हमारे पास contacting surface जो है anterior teeth के वो control कर रहे हैं. Limiting the mandibular movements, anterior guidance is considered to be one of the most variable rather than a fixed factor. Anterior guidance को हम वेरिएबल कर सकते हैं. हम ऊपर के दांतों की जो कॉन्टैक्टिंग सर्फेस है उनको वेरी कर सकते हैं, उनका ऑक्लूजन चेंज कर सकते हैं वाइल टीथ सेटिंग. सो इट कैन बी ऑल्टर्ड बाय डेंटल प्रोसीजर्स. So anterior controlling factor and posterior controlling factors of mandibular movement, they are independent of each other. Posterior को हम इतना कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन anterior को हम अपने occlusal plane से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. Next, after implant placement, the ideal yearly bone loss should be less than what? Ideal yearly bone loss should be less than 0.2 millimeter. मतलब एक साल में 0.2 मिलीमीटर से कम बोन लॉस अगर होता है, then that is case is known as ideal. Now after implant placement there is a health scale for dental implants. Implant quality की scale होता है हमारे पास. फर्स्ट इज अगर सक्सेस बोल रहे हैं, so there is no pain or tenderness upon function, zero mobility, less than 2 millimeter of radiographic bone loss from the initial surgery. ठीक, probing depth is less than 5 millimeters and bleeding on probing should be 0 to 1, मतलब bleeding और probing absent होनी चाहिए. कोई भी exudate की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए. एंड ट्रीटमेंट इज़ नॉर्मल मेंटेनेंस शुड बी डन. जो भी अभी तक कर रहा है वही करना है पेशेंट ने. सेकंड इज सर्वाइवल और सेटिस्फैक्ट्री हेल्थ. कोई पेन नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, लेकिन रेडियोग्राफिक बोन लॉस है 2 से 4 मिलीमीटर का. प्रोबिंग डेप्थ, अब 2 से 4 मिलीमीटर रेडियोग्राफिक बोन लॉस है, प्रोबिंग डेप्थ और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, दैट इज़ 5 to 7. ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग 0 to 2 आ जाती है. ठीक, और कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री नहीं होती. इसमें रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस की बात करनी होती है, मतलब उसका ऑक्लूजल हमें रिडक्शन ऑक्लूजल चेंजेस करने हैं. शॉर्टर इंटरवल बिटवीन हाइजीन अपॉइंटमेंट्स, मतलब हाइजीन अपॉइंटमेंट्स के लिए अब शॉर्टर अपॉइंटमेंट देंगे हम, इंटरवल देंगे. मतलब पहले 2 हफ्ते में बुला रहे थे तो अब 1 हफ्ते में, या फिर पहले 6 महीने में बुला रहे थे तो अब 3 महीने में बुलाएंगे. जिंजिवोप्लास्टी करेंगे उसके ऊपर. एंड एनुअल रेडियोग्राफ्स शुड बी टेकन फॉर रिकॉर्ड. नेक्स्ट, सर्वाइवल या फिर कॉम्प्रोमाइज हेल्थ. बच गया लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है हेल्थ. जीरो मोबिलिटी है, रेडियोग्राफिक बोन लॉस ग्रेटर दैन 4 mm है पर ईयर, या फिर लेस देन हाफ ऑफ द इम्प्लांट ऑफ द बॉडी पर ईयर. ठीक है. प्रोबिंग डेप्थ 7 मिलीमीटर से ज़्यादा हो चुकी है. एक्सुडेट की हिस्ट्री है, कोई पेन नहीं है फंक्शन के ऊपर. ठीक है, तो स्ट्रेस कम करने एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देंगे. सर्जरी रिटेंशन रिविजन करना पड़ेगा उसमें. ठीक है. चेंज इन द प्रोसेस और इम्प्लांट इफ़ रिक्वायर्ड. ठीक है. लास्ट आता है हमारे पास फेलियर, और क्लिनिकल और एब्सोल्यूट फेलियर हो सकता है इसमें. पेन अपॉन फंक्शन, मोबिलिटी है, ग्रेटर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इम्प्लांट जो है वो जा चुका है, बोन लॉस हो चुका है. अनकंट्रोलेबल एक्सुडेट्स आर कमिंग फ्रॉम द इम्प्लांट साइट. नो लॉन्गर इम्प्लांट इन द माउथ, मतलब इम्प्लांट ही बाहर आ गया तो वो तो फेल कर ही गया. तो उसमें हम अगर ये सारी चीज़ें तो रिमूवल ऑफ इम्प्लांट कर देंगे, और नो लॉन्गर माउथ में है मतलब इम्प्लांट निकल गया मुँह से, तो फिर उस एरिया को क्लीन करके उसको सूचर अप करेंगे. नेक्स्ट इज as seen in the image below, what is the minimum vertical distance required between the implant and the opposing occlusal surface? तो हमारे को चाहिए जो आंसर है दिया हुआ, that is 8 millimeters. देखो, the inter-arch distance is defined as the vertical distance between the maxillary and the mandibular dentate or edentate arches. Inter-arch distance. Under specific condition, for example, the mandible is at rest or it is at occlusion.
ठीक है। जो क्राउन हाइट होती है दैट इज द स्पेस फॉर इम्प्लांट डेंटिस्ट्री इज मेजर्ड फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द बोन टू द प्लेन ऑफ ऑक्लूजन। क्रेस्ट ऑफ द बोन से लेकर टू द प्लेन ऑफ ऑक्लूजन तक हम क्राउन हाइट मेजर करते हैं। अब अगर टर्म्स की बात करें तो पोस्टीरियर रीजन में हम प्लेन ऑफ ऑक्लूजन बोलते हैं, और अगर एंटीरियर रीजन है तो उसमें हम कहते हैं इंसाइजल एजेस ऑफ द आर्च। ठीक है। द आइडियल क्राउन हाइट स्पेस फॉर अ फिक्स्ड प्रोस्थेसिस, फिक्स्ड इम्प्लांट शुड रेंज फ्रॉम 8 मिलीमीटर टू 12 मिलीमीटर, ये आइडियल होती है हमारे पास। ठीक है। ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर की हमारे पास ऑक्लूजल क्लियरेंस चाहिए, और ये हमारे पास ऑक्लूजल टेबल आ गया या फिर हमारा इंसाइजल टेबल आ गया, जो भी दांत हम बात कर रहे हैं। अब ऑक्लूजल टेबल या इंसाइजल टेबल से लेकर ये जो इम्प्लांट के प्रोस्थेटिक प्लेटफॉर्म है इसकी हाइट 8 मिलीमीटर्स होनी चाहिए। ठीक है। इट शुड रेंज फ्रॉम 8 टू 12 मिलीमीटर्स। ठीक है। और प्रोस्थेटिक प्लेटफॉर्म से नीचे हमारे पास 1 मिलीमीटर, लेस देन 1 मिलीमीटर के बाद बोन लेवल शुरू हो जाना चाहिए। देयर शुड बी अ ग्रेटर देन 1 to 2 मिलीमीटर्स ऑफ जिंजाइवल टिश्यू, सब जिंजाइवल टिश्यू होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है। और 5 मिलीमीटर की हमारे पास सीमेंट रिटेंशन होनी चाहिए। दिस इज़ 5 मिलीमीटर्स ऑफ सीमेंट रिटेंशन। ठीक, मतलब ये जो ऊपर का अबटमेंट वाला दांत है ये 5 मिलीमीटर का होना चाहिए। 1 मिलीमीटर की क्लियरेंस ऑक्लूजल टेबल से, और यहाँ से 8 से 12। ठीक। नेक्स्ट, इन द इमेज गिवन बिलो, इस वाले सैम्पल में व्हाट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड बिटवीन द 2 रिमेनिंग टीथ फॉर इंसर्शन ऑफ 2 5 मिलीमीटर डायमीटर इम्प्लांट्स। मतलब इन दोनों का डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। तो अब बताओ कि इन दोनों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ताकि ये सेफली फिट कर सकें हम 2 इम्प्लांट्स। आंसर से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इम्प्लांट प्लेसमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। हमारे को जो दिया हुआ है कि 5 मिलीमीटर का इम्प्लांट है, 5 मिलीमीटर का इम्प्लांट 2 है, और इम्प्लांट और टूथ के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस होता है दैट इज़ 1.5 मिलीमीटर। ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो 1.5 मिलीमीटर हमारे पास मोलर की साइड आ गया, 1.5 मिलीमीटर हमारे पास प्री मोलर की साइड आ गया। ठीक। और दूसरा रूल ये होता है कि इम्प्लांट और इम्प्लांट के बीच में मिनिमम डिफरेंस 3 मिलीमीटर का होना चाहिए। ठीक, ये भी हो गया। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, देखो 1.5 mm यहाँ छोड़ रहे हैं, 1.5 mm यहाँ छोड़ रहे हैं, तो टोटल हमने 3 mm छोड़ दिया, 3 mm छोड़ दिया, राइट। प्लस 3 mm हमारा इम्प्लांट और इम्प्लांट के बीच में छोड़ा, तो ये आ गया हमारे पास 6 mm। ठीक। प्लस 2 इम्प्लांट की लेंथ कितनी है, 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10। सो टोटल विल बी हाउ मच, 10 मिलीमीटर, ये दोनों इम्प्लांट की लेंथ आ गई, प्लस जो हमने छोड़ा है स्पेस ताकि इम्प्लांट सेफ रहे और बाकी टूथ स्ट्रक्चर भी सेफ रहे, और बोन भी उतनी मिले कि इम्प्लांट जो फोर्सेस उनको बेयर कर पाए, वो हमारे पास है 6 मिलीमीटर जो हमने यहाँ से निकाला। सो टोटल विल बी 16 मिलीमीटर अगर हमें 5 मिलीमीटर के इम्प्लांट 2 दांतों के बीच में डालने। तो नेक्स्ट, बोन टैपिंग इन डेंस बोन इज डन बिफोर इम्प्लांट इंसर्शन फॉर व्हाट? सो इट इज़ डन फॉर पैसिव प्लेसमेंट ऑफ द इम्प्लांट। ठीक है। बोन टैपिंग हम पैसिव प्लेसमेंट के लिए करते हैं। अब बोन टैप शुड बी डन और यूज्ड इन अ D1 बोन बिफोर इंसर्शन ऑफ अ थ्रेडेड इम्प्लांट। देखो, एक लेकॉम और ज़ार्प क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पे हम बोन डेंसिटी को क्लासीफाई करते हैं, D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है। D1 हमारे पास वेरी डेंस कॉर्टिकल बोन आती है। इट इज़ ओनली कॉर्टिकल बोन एंड फाउंड इन एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबल। सारी कॉर्टिकल होती है, ग्रेटर स्टेबिलिटी बट हीट्स अप ड्यूरिंग ड्रिलिंग। जब इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये हीट अप कर जाती है बहुत जल्दी, तो यहाँ पे नेक्रोसिस का खतरा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे हमें इरिगेशन बहुत ज़रूरी रहती है। D2 बोन इज़ लेस स्ट्रॉन्ग देन D1 बोन। ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग बट नॉट दैट हार्ड एज D1 बोन। इट इज़ फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल। इसमें कॉर्टिकल शेल आ जाती है प्लस डेंस कैंसलस बोन का कोर आ जाता है। ठीक है। इट इज़ बेस्ट ओवरऑल बोन क्वालिटी फॉर इम्प्लांट्स। पोस्टीरियर मैंडिबल की बात हो रही है। ठीक है। D3 हमारे पास होती है सॉफ्टर देन D2। D3 हमारे पास फाउंड होती है इन द एंटीरियर मैक्सिला। ये इसमें थिन कॉर्टिकल प्लेट होगी प्लस स्पॉन्जी बोन ज़्यादा होगी। एंटीरियर पार्ट ऑफ मैक्सिला की बात कर रहे हैं। ब्लड सप्लाई ठीक होती है, मॉडरेट स्टेबिलिटी होती है। ठीक है। D4 इज़ वेरी थिन कॉर्टिकल बोन, बहुत सॉफ्ट कैंसलस बोन होती है D4। ठीक है। ये पोस्टीरियर मैक्सिला में दिखाई देती है, ज़्यादातर हमारे जो थर्ड मोलर वाला रीजन है वहाँ पे चीज़ दिखाई देती है। ये ज़्यादातर इसमें मोर कंटेंट हमारे पास स्पॉन्जी बोन का होता है, पुअर प्राइमरी स्टेबिलिटी होती है, हाई इम्प्लांट फेलियर रिस्क होता है D4 बोन में। अब पैसिव इम्प्लांट प्लेसमेंट का क्या मतलब है? देखो, व्हेनेवर एन इम्प्लांट गोज इनटू अ बोन स्मूथली विदाउट टू मच फोर्स और प्रेशर, इट इज़ नोन एज पैसिव प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट। पैसिव प्लेसमेंट क्यों रहती है? ताकि ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे इम्प्लांट को तो अराउंड जो इम्प्लांट है हमारी बोन, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं वो नेक्रॉस हो जाती हैं बहुत जल्दी फोर्स की वजह से। ठीक है। सो जस्ट कंफर्टेबली फिट करना होता है हमें इम्प्लांट को, दैट इज़ नोन एज पैसिव प्लेसमेंट ऑफ एन इम्प्लांट।
नाउ व्हाई बोन टैपिंग इज नीडेड इन D1 बोन? देखो D1 बोन बहुत ज़्यादा हार्ड है पहले, तो इम्प्लांट थ्रेड जो है वो इजीली कट नहीं कर पाते हैं बोन के अंदर, सो वी यूज़ बोन टैप। मतलब प्री कट थ्रेड्स जो हैं वो बोन के अंदर बनाए जाते हैं। पहले हम इम्प्लांट्स थ्रेड्स के लिए एक स्पेस बनाते हैं जिससे स्मूथ पैसिव इंसर्शन ऑफ इम्प्लांट हो सके। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ बोन टैपिंग इन सिंपल वर्ड्स आर टू प्रिवेंट द इम्प्लांट डैमेज and to prevent the tissue damage. If you force the implant very hard into the bone, it can damage the implant surface, the mount and the wrench of which you are using for tightening the implant. ठीक है, जो सेकेंड चीज़ है सर, सेकेंड जो हमारा फ़ायदा है बोन टैपिंग का कि इट रिमूव्स द ड्रिल डेब्रिस और लैमिनेट्स लेफ्ट बाय द ड्रिल. In dense bone, small metal bone flakes or laminates may remain in the osteotomy procedure. ठीक है, तो बोन टैप से ये सारे लैमिनेट्स भी बाहर आ जाते हैं. अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास फ्यूचर कोरोजन इम्प्लांट का लैमिनेट्स के द्वारा या फिर डिफरेंट मेटल्स के टचिंग के द्वारा जो कोरोजन का रिस्क है वो कम हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ द पर्पस ऑफ बोन टैपिंग. Next question we have is bone type shown in the image Leckhom and Zaab is seen in which body region? ठीक है, ये बोन टाइप कहाँ दिखाई देता है? ये हमारे पास एंटीरियर मैंडिबल के अंदर दिखाई देता है. कहाँ? एंटीरियर मैंडिबल के अंदर. देखो बोन डेंसिटी क्लासिफिकेशन स्कीम जो थी दैट वाज गिवन बाय मिस्ट एंड जूडी इन 1987. इसमें D1, D2, D3 और D4 में इसने क्लासीफाई किया था. D1 इज़ द हाईएस्ट डेंस कॉर्टिकल बोन जिसकी टेंडेंसी या फिर जिसका जो टच होता है टैक्टाइल सेंसेशन जो होती है वो ओक मेपल वुड की तरह होती है और ये एंटीरियर मैंडिबल के अंदर दिखाई देती है हमें. ठीक है, ये 30 to 40 PCF पाउंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर की फोर्स जो है वो झेल सकती है. नेक्स्ट D2 की बात आती है. D2 के अंदर हमारे पास पोरस कॉर्टिकल बोन होती है और उसमें कोर्स ट्रैबेक्युले होते हैं. ठीक है, जो अंदर जो ट्रैबेकुलर बोन है या कैंसलस बोन है उसमें पोरस नेचर की होती है वो. D2 हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबल के अंदर दिखाई देती है. ये अगर आप टैक्टाइल सेंसेशन की बात करें तो वाइट पाइन या फिर स्प्रूस वुड उसके जैसी सेम फीलिंग देती है. ठीक है, तीसरी बात आती है कि ये एंटीरियर मैंडिबल में ज़्यादा कॉमन होती है लेकिन एंटीरियरली ज़्यादा आगे आते वक्त, लेकिन पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादा कॉमन होगी. ठीक है, दिस इज़ टोटली इन एंटीरियर. अब एंटीरियर से पोस्टीरियर जाते जाते हैं तो इसमें ट्रांसफॉर्म होता रहता है. अब बात आती है मैग्जिला के बारे में. मैग्जिला में आती है D3 बोन. मैग्जिला के अंदर पोरस कॉर्टिकल बोन होती है. पोरस कॉर्टिकल बोन दैट इज़ हैविंग थिन एंड फाइन ट्रैबेकुले विद इन इट. ये बालसा वुड जैसा इसका टैक्टाइल सेंसेशन होता है, बालसा वुड जैसा. ठीक, और ये एंटीरियर मैग्जिला में और एंटीरियर मैग्जिला से पीछे पोस्टीरियर मैग्जिला जाते जाते ये ट्रांसफॉर्म होती है इनटू D4. ठीक है, D4 जो होती है वो सबसे कम फोर्स हमारी बियर कर पाती है और ये 5 to 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच की पाउंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर की फोर्स जो है वो बियर कर पा रही है. इसमें फाइन ट्रैबेकुले प्रेजेंट होते हैं और इसका जो टैक्टाइल सेंसेशन होता है वो स्टायरोफॉर्म की तरह होता है. और D4 हमारे पास पोस्टीरियर मैग्जिला के अंदर दिखाई देता है. अब इनको क्लिनिकली देखते हैं. देखो सारी D1 से D4 हमारे पास ऐसी दिखती हैं. D1 इज़ टोटली पैक्ड. D2 थोड़े ट्रैबेकुले आएंगे, फाइन ट्रैबेकुले आएंगे. ठीक है, D2 के अंदर. और D3 हमारे पास कैंसलस हो जाएगी, मोर लाइक अ स्पॉन्जी बोन. ठीक है, क्योंकि मैग्जिला की बात आ रही है. D4 इज़ लीस्ट, बहुत ज़्यादा ट्रैबेकुले होंगे, बहुत ज़्यादा बीच में स्पेसी ट्रैबेकुले होंगे और ये बोन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी. D4 बोन इज़ द लीस्ट सपोर्टिव और लीस्ट स्ट्रांग बोन. ठीक, और ये थर्ड मोलर के रीजन में देख सकते हो आप मैग्जिला के रीजन में. तो अब बोन डेंसिटी की क्लासिफिकेशन लेकहॉम और ज़ाब ने दी थी 1985 में. D1, D2, D3, D4. डेंटल रेडियोलॉजी बोन डेंसिटी क्लासिफिकेशन हाउजेनफील्ड यूनिट्स में नापी जाती है. हाउजेनफील्ड स्केल इज़ द क्वांटिटेटिव स्केल फॉर डिस्क्राइबिंग द रेडियो डेंसिटी. ठीक है, HU 1250 हमारे पास D1 की है. रेडियो डेंसिटी इतनी ज़्यादा है इसकी, ये मतलब D1 बोन है. HU अगर आती है हमारे पास दैट इज़ हाउजेनफील्ड स्केल में जो वैल्यू है वो 850 से 1250 के बीच में आती है. दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ D2 बोन. 350 से 850 के बीच में आती है दैट इज़ D3. 150 से 350 के बीच में आती है तो D4 बोन. ठीक, वाई इम्प्रेशन कंपाउंड इज़ यूज फॉर प्राइमरी CD इम्प्रेशन. इम्प्रेशन कंपाउंड इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ सेल्फ सपोर्टिव इन नेचर. एक टेम्परेचर के बाद इम्प्रेशन कंपाउंड को ट्रे नहीं चाहिए रहती अपना डायमेंशन मेंटेन करने के लिए. ठीक है, सो द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड आर द मटेरियल इट कैन बी रीयूज्ड 2 to 3 times बाय जस्ट मोल्डिंग द टेम्परेचर. ठीक है, इनएक्यूरेट पोर्शन को हम रीमेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर हीट करके उसको दोबारा से इंप्रेशन ले लेते हैं. थर्ड, एक्यूरेसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फ्लेमिंग द सर्फेस. जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे.
ठीक है, वहाँ पे हम फ्लेम करेंगे, उसको दोबारा इंप्रेशन लेंगे और उससे एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है. द मटेरियल हैज़ सफिशिएंट बॉडी टू सपोर्ट इटसेल्फ, ठीक है, एंड सफिशिएंट प्रॉपर्टीज टू सपोर्ट इटसेल्फ, स्पेशली इन द केस ऑफ पेरिफेरल रीजन्स. पेरिफेरल रीजन में ये इंप्रेशन को रिटेन करके रखता है. Next, a 73-year-old healthy patient wearing complete denture for past 10 years complain of pain after wearing the denture now. 10 साल से डेंचर पहन रहा था लेकिन अभी दर्द शुरू हुई है उसको. Oral examination reveals lingual mucosa overgrowing the ridge. What will be the reason of the pain? ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न जो है that is excessive ridge resorption and exposure of genial tubercles. दैट इज़ द मेन रीज़न कि बंदा 10 साल से पहन रहा है, उसको पहले कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब उसको दिक्कत होने स्टार्ट हो गई है और म्यूकोजा के ऊपर एक ओवर ग्रोथ आ गई है, जो कि रिज के ऊपर दिखाई दे रही है. समटाइम्स द जीनियल ट्यूबरकल्स दे आर एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच एडवांस रिज रिडक्शन जो होती है इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल इट बिकम्स डिफिकल्ट. ठीक है, इफ़ द एक्टिविटी ऑफ जीनियोग्लॉसस मसल हैज़ अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस द लोअर डेंचर, और अगर हमारे पास ट्यूबरकल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं पेस्चर को, तो वहाँ पे हमारे पास दिक्कत आना शुरू हो जाती है. तो इन केसेस में हम जीनियल ट्यूबरकल्स को ही रिमूव कर देते हैं. राइट, दिस इज एग्जांपल ऑफ edenculous ridge with a flat residual alveolar ridge. The mylohyoid ridge lie flushed posteriorly with the crest of alveolar ridge. ठीक है, mylohyoid ridge ये चल रही है हमारे पास crest of alveolar ridge के साथ साथ. The mylohyoid ridges are sharp and the area beneath them is forming an undercut. ठीक, the genial tubercles that come to lie closer to the crest of alveolar ridge as resorption occurs. अब genial tubercles बहुत पास आ जाते हैं alveolar ridge के, जैसे जैसे resorption होती है तो उसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाती है. तो इस कंडीशन में we will round off the genial tubercles, right? और the other method could be हम इस रीजन में रिलीफ प्रोवाइड कर दें, जो genial tubercle वाला रीजन है उसमें रिलीफ प्रोवाइड कर दें. Next, the type of occlusion given for class 1 mandibular RPD opposing completely to edentulous maxilla is what? तो हमें हमेशा bilaterally balanced occlusion देना होता है in an RPD. Bilaterally balanced occlusion in an RPD. See, simultaneous bilateral contacts of opposing posterior teeth must occur in centric occlusion so as to provide a desirable occlusal contact in the partial dentures. Occlusion for the tooth supported RPTs, they may be arranged similar to the occlusion seen in harmonious natural dentition because the stability of such RPD results from the effect of direct retainer at both the ends of the denture base. Direct retainer से ही stability ले रहा है. The bilaterally balanced occlusion in eccentric position should be formulated when a maxillary complete denture opposes the removable partial denture. ठीक, मतलब अगर हमारे पास पूरी सीडी है, ऊपर पूरा edenculous है, ऊपर पूरी सीडी बना रहे हैं और नीचे हम आरपीडी दे रहे हैं, तो वहाँ पे बायलेटरली बैलेंस ऑक्लूजन हमें देना पड़ेगा. नेक्स्ट, वर्किंग साइड कॉन्टैक्ट्स शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर मैंडिबुलर डिस्टल एक्सटेंशन डेंचर. वर्किंग साइड के कॉन्टैक्ट करने और नॉन वर्किंग साइड के कॉन्टैक्ट रिमूव करने हैं, नहीं करवाना है नॉन वर्किंग साइड का कॉन्टैक्ट. सो दिस विल इंश्योर दैट कॉन्टैक्ट्स विल अकर साइमल्टेनियसली विद द वर्किंग साइड ऑफ द नेचुरल टीथ. ठीक, नेक्स्ट, साइमल्टेनियस वर्किंग ऑन बैलेंसिंग should be done so as to form a maxillary bilateral distal extension RPD whenever possible. Bilaterally हमें बैलेंस करवाना पड़ता है, साइमल्टेनियसली हमें वर्किंग साइड और बैलेंसिंग कॉन्टैक्ट्स को बैलेंस करवाना पड़ता है. Only the working contacts needed to be formulated for maxillary and mandibular unilateral distal extension RPDs. सिर्फ वर्किंग साइड पे ही हमने कॉन्टैक्ट करवाना है, नॉन वर्किंग साइड पे नहीं करवाना है. ठीक है, यही अलग स्टेटमेंट की तरह से बोल रहा है. ओनली द वर्किंग कॉन्टैक्ट्स नीडेड टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर द मैक्सिलरी और मैंडिबुलर यूनिलेटरल डिस्टल एक्सटेंशन आरपीडी. नेक्स्ट, निकल इज एडेड टू स्टेनलेस स्टील फॉर व्हाट? निकल को क्यों ऐड किया जाता है? फर्स्ट इज टू इंक्रीज हार्डनेस, सेकंड टू इंक्रीज द कोरोजन रेजिस्टेंस, थर्ड इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड फोर्थ इज टू स्टेबलाइज द ऑस्टेनेटिक फेज. जो ऑस्टेनेटिक फेज होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन मार्टन साइड फेज, इसीलिए निकल को ऐड किया जाता है. ठीक है, अब गलत ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं. गलत ऑप्शन पहला है इंक्रीजिंग फ्यूजन टेम्परेचर. फ्यूजन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, निकल स्टेनलेस स्टील का फ्यूजन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा एंड इट विल नॉट डिक्रीज द सिंटरिंग टेम्परेचर. थ्योरी, रोल ऑफ निकल इन स्टेनलेस स्टील इज टू इंक्रीज फॉर्मिडेबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी एंड इंक्रीज मैलेबिलिटी. ठीक, it will increase the corrosion resistant and it will increase the elastic modulus and hardness of the stainless steel.
The austenitic structure for AISI series 300 stainless steel is achieved by addition of nickel to iron chromium. निकल किस में ऐड करते हैं हम? आयरन क्रोमियम में, ठीक है। आयरन क्रोमियम कार्बन का एक जो कंपोजिशन है उसमें हम निकल को ऐड कर देते हैं, जिससे हम बनाते हैं AISI ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर सीरीज़। ये ब्रांड नेम है, ऑस्टेनेटिक AISI सीरीज़ 300 स्टेनलेस स्टील। और अगर AISI की फुल फॉर्म चाहिए तो AISI इज़ अमेरिकन आयरन स्टील इंस्टीट्यूट, अमेरिकन आयरन स्टील इंस्टीट्यूट। Next question is, after domestic violence or trauma, there is a mobility in angle of the mandible in the patient. Which radiograph will be preferred for accurate diagnosis? तो हमारे को जो आंसर दिया हुआ है that is PA view will be preferred and OPG will be preferred. Theory for diagnosis of any fracture, at least 2 radiographs are important. ठीक है, जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों वो ज़रूरी होते हैं। इस केस में हमने OPG और PA व्यू को सिलेक्ट किया है, इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है। यहाँ पे बाकी ऑप्शन जो हैं दैट इज़ वाटर्स व्यू। वाटर्स व्यू मेनली हम पैरानेजल साइनसिस और मिड फेस के लिए करते हैं। मिड फेस का कोई फ्रैक्चर होगा या पैरानेजल साइनस में कोई दिक्कत होगी तब वाटर्स व्यू में जाते हैं। लेटरल ऑब्लिक व्यू विल शो इप्सिलैटरल कॉन्डाइल्स, ठीक है। इप्सिलैटरल रैमस शो करेगा, कॉन्ट्रालैटरल एंगल ऑफ मैंडिबल को भी शो करेगा, ठीक है। बायलेटरल ऑब्लिक व्यू अगर हम करवाते हैं तो दैट मे बी सफिशिएंट इन दिस कंडीशन, मगर उसमें हमारे पास फ्रैक्चर्स ऑफ एंटीरियर रीजन ऑफ मैंडिबल जो है वो मिस हो जाएंगे, ठीक है। OPG और PA स्कल इज़ द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन व्यूज़ फॉर सच केसेस सो दैट द फ्रैक्चर लाइन्स एंड देयर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जज्ड एक्यूरेटली, ठीक है। एंड मिस्ड फ्रैक्चर्स आर ईजिली डायग्नोस्ड, जो क्लिनिकली मिस्ड फ्रैक्चर्स हैं उन्हें हम ईजिली डायग्नोस कर लें, उसके लिए हम OPG और PA व्यू का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं मैक्सिमम। Next, a 5-month-old child was brought to your clinic with a large swelling in the maxilla, ठीक है, as shown in the image given below. It is rapidly growing, non-ulcerated, darkly pigmented. 3 चीज़ें हैं, rapidly growing, non-ulcerated, darkly pigmented. सारी hematological investigations within the normal range हैं. Urine examination reveals the levels of vinyl mandelic acid high, मतलब elevated levels हमारे पास vinyl mandelic acids के आए हैं। तो हमारा diagnosis क्या होगा? So answer given is melanotic neuroectodermal tumor of infancy. Melanotic neuroectodermal tumor of infancy. इसमें 3 चीज़ें हैं that lead to spot diagnosis of melanotic neuroectodermal tumor of infancy. That patient is a child less than 1 year of age. 1 साल से छोटा बच्चा है। Rapidly growing pigmented swelling है maxilla में, increased VMA है, increased VMA in यूरिन, ठीक है। और मेलानोटिक न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी, ये हमारा डायग्नोसिस बनता है। VMA हमारे पास क्या होता है? विनाइल मैंडेलिक एसिड, ठीक है। ग्रेटर देन 90% ऑफ द केसेस अकर इन हेड एंड नेक रीजन, ठीक है, विद एंटीरियर मैक्सिला एज द मोस्ट कॉमन साइट, फॉलोड बाय स्कल, मैंडिबल, एपिडिडमस एंड ब्रेन। दे आर रैपिडली ग्रोइंग, नॉन अल्सरेटेड, डार्कली ड्यू टू द पिगमेंटेड लीजन्स, क्योंकि इसके अंदर मेलेनिन प्रेजेंट होता है। The tumor can displace or destroy decidus dentation, developing decidus dentation to be more accurate, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है ये ट्यूमर। रेडियोग्राफिकली इट अपीयर्स एज अ यूनिलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर रेडियोलुसेंसी विद अपीयरेंस ऑफ इन्वेजिव मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, ठीक है। ये यूनिलोक्यूलर या फिर मल्टीलोक्यूलर रेडियोलुसेंसी की तरह दिखाई देता है विद अपीयरेंस ऑफ इन्वेजिव मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स रेडियोग्राफिकली, ओके। तो ये फाइनली हमारे पास कौन सा बनता है? दैट इज़ न्यूरो एक्टोडर्मल, मेलानोटिक न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी, MNTI। म्यूकोसील इज़ मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट ऑन वेयर? तो म्यूकोसील इज़ प्रेजेंट ऑन द लोअर लिप मोस्ट कॉमनली, क्योंकि हैबिचुअल ट्रॉमा सबसे ज़्यादा लोअर लिप में हमारे पास कॉमन रहता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरेंस ऑफ दिस म्यूकस एक्सट्रावसेशन सिस्ट इज़ लोअर लिप, फॉलोड बाय टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ दैट विल कॉज, अगर फ्लोर ऑफ द माउथ पे होता है तो रैनोला बोलते हैं, एंड द बक्कल म्यूकोजा। हिस्ट्री ऑफ रप्चर, कोलैप्स एंड रीफिलिंग इज़ देयर, ठीक है। पेशेंट रिपोर्ट करता है कि ये जो फिंसी जैसी थी, ये म्यूकोसिल जैसा था, ये फटा, इसमें से कुछ निकला बाहर, ठीक है, पस जैसा कुछ निकला और फिर ये सूख गया, फिर दोबारा से ये दोबारा बन गया है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट इसका जो होता है दैट इज़ कंजर्वेटिव एक्सीजन ऑफ द म्यूकोसील। Basically, mucocele is a benign mucus-containing cystic lesion of minor salivary gland. The more common is mucus extravasation cyst. ठीक है, mucus extravasation cyst is more common rather than mucus retention cyst. ठीक।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एडहेरेंट वाइट लीजन? नॉन एडहेरेंट वाइट लीजन हमारे पास है ओरल, थ्रश और कैंडिडियासिस, ठीक है। बाकी हमारे पास एडहेरेंट होते हैं। लाइकन प्लानस एडहेरेंट है, वाइट स्पॉन्जी निविस इज एडहेरेंट, ल्यूकोप्लेकिया इज एडहेरेंट। यहाँ नॉन एडहेरेंट का मतलब होता है दैट कुड बी स्क्रेप्ड ऑफ इजीली, ठीक है। तो इनमें से जो स्क्रेपेबल लीजन है वो हमारे पास ओरल थ्रश है, जिसमें सॉफ्ट वाइट एलिवेटेड प्लाक लाइक चीज़ें दिखती हैं जो कि रिजेंबल करती हैं मिल्क कर्ड को, कंटेनिंग टैंगल्ड मासेस ऑफ फंगल हाइफे विद इंटरमिंगल्ड डीस्क्वामेटेड एपिथेलियम, केराटिन, फाइब्रिन, नेक्रोटिक डेब्रिस, ल्यूकोसाइट्स एंड बैक्टीरिया। ये सारे फंगल हाइफे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियम, केराटिन, फाइब्रिन, नेक्रोटिक डेब्रिस, ल्यूकोसाइट्स और बैक्टीरिया। द प्लाक कैन ऑल्सो बी वाइप्ड अवे विद अ गॉज, लीविंग ईदर अ नॉर्मल और एन इरिथमेटस एरिया एट द साइट, ठीक है। ये जो नॉन एडहेरेंट या स्क्रेपेबल लीजन है, दिस इज ओरल थ्रश और कैंडिडियासिस। जो बाकी ऑप्शन है हमारे पास, दे आर एडहेरेंट, मतलब वो नॉन स्क्रेपेबल है, उनको स्क्रेप अप नहीं कर सकते, एडहेयर कर जाते हैं वो, ठीक है। एग्जाम्पल ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया इज द लोकलाइज्ड हाइपरकेराटोटिक वाइट लीजन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है, ये डेफिनेशन में पूरा। ल्यूकोएडिमा, इट इज़ अ बक्कल म्यूकोजल लीजन विच इज फिल्मी ओपेलेसेंट in early stages and shows a definite greenish white cast with coarsely wrinkled surface in the later stages, ठीक। थर्ड आता है लाइकन प्लानस। लाइकन प्लानस इज a white wavy parallel or non elevated striae that do not criss cross, ठीक है। इसमें स्ट्राई बने होते हैं, वाइट पैचेस, वाइट वेवी, ठीक है, जो क्रिस क्रॉस नहीं करते। वाइट स्पॉन्जी नीवस, थिकन्ड वेलवेटी स्पॉन्ज लाइक टिश्यू, the most commonly is found on the moist lining of oral mucosa, especially on the inside of the cheeks, ठीक है। This is lichen planus. Next, snow capped defect of incisors and permanent molars with obliteration of pulp chambers is seen in, answer is dentinogenesis imperfecta and MIH. इनमें क्या दिखाई देता है? Snow capped defect of incisors and permanent molars. Snow cap defect of incisors and molars is a typical molar incisor hypocalcification, MIH का केस होता है typical, ठीक है, MIH molar incisor hypocalcification, but is also seen in some cases of amelogenesis imperfecta. However, obliteration of pulp canals या फिर pulp chamber, जो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, there is an obliteration of pulp canal और pulp chamber, वो हमारे पास स्पेशल टिपिकल फाइंडिंग होती है इन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसीलिए हम चूज़ कर रहे हैं डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड MIH। और हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है जिसमें अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा और MIH भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पल्प चैम्बर के ऑब्लिट्रेशन के चक्कर में इसको चूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, वैन डर वाउट सिंड्रोम इज ड्यू टू डिफेक्ट इन विच ऑफ दीज जीन्स। वैन डर वाउट डिफेक्ट जो होता है वो IRF6 जीन का डिफेक्ट जब होता है तब होता है, कॉज होता है। सी, वैन डर वाउट सिंड्रोम जो होता है VWS, it is dominantly inherited developmental disorder characterized by pits and or sinuses of the lower lip, ठीक है। क्लेफ्ट लिप भी हो सकता है या फिर क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, या क्लेफ्ट लिप पैलेट एक साथ भी हो सकता है, या क्लेफ्ट पैलेट खाली भी हो सकता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्लेफ्ट सिंड्रोम। वैन डर वार्ड सिंड्रोम जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्लेफ्ट सिंड्रोम है। Now, Van der Waals syndrome is caused by mutation in two important genes. First is IRF6 and second is GRHL3. IRF6 or interferon regulator factor 6 is a gene responsible for normal development of face, lips, palate, and it is located on the chromosome number 1 at place 1q32. ठीक. When different types of mutations occur in IRF6 called as heterogeneous mutations, they lead to Van der Waals syndrome, that is VWS1 syndrome, Van der Waals syndrome type 1, which typically present with the cleft lip, cleft palate and characteristic lip pits, ठीक है। Van der Waals syndrome 2 VWS2 on the other hand occurs due to mutation in GRHL3 gene. इसकी फुल फॉर्म होती है grainy head like transcription factor 3 gene. It is important for skin formation, epithelial integrity and the fusion of lip and palate during development, ठीक है। स्किन फॉर्मेशन, एपिथेलियल इंटीग्रिटी के लिए ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है। GRHL3 इज लोकेटेड ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 दैट इज 1p36, ये इसकी लोकेशन है। व्हेन दिस जीन इज म्यूटेटेड द नॉर्मल फ्यूजन ऑफ द फेशियल स्ट्रक्चर्स इज डिसरप्टेड। जब ये GRHL3 म्यूटेट हो जा रही तो नॉर्मल फ्यूजन जो है डिसरप्ट हो जा रहा है, रिजल्टिंग इन cleft lip, cleft palate, lip pit as similar to VWS1, that is Van der Waals syndrome 1.
Next, defect in which of the genes is present that causes non-eruption of teeth due to absent PDL traction. तो PTH1R जीन जो है अगर ये एब्सेंट होती है तो यहाँ पे नॉन इरप्शन ऑफ द टीथ हो जाता है ड्यू टू एब्सेंट PDL ट्रैक्शन. देखो PDL ट्रैक्शन इट रेफर्स टू द नेचुरल पुलिंग फोर्स जनरेटेड बाय द पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर्स व्हिच हेल्प द टूथ टू लिफ्ट अपवर्ड ड्यूरिंग इरप्शन. ठीक है, दिस ट्रैक्शन इज एसेंशियल फॉर द टूथ टू मूव आउट ऑफ द बोन एंड एंटर इनटू द माउथ. इसके लिए हमारे पास जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज PTH1R gene, that is parathyroid hormone 1 receptor gene. It is produced and in response to the parathyroid hormone and PTH related protein, both of which regulate the bone remodeling, root development and proper functioning of the periodontal ligament. When the PTH1R gene is mutated, the PDL cannot generate its normal pulling force क्योंकि अब यहाँ पे remodeling नहीं हो पा रही बोन की. ठीक है, रूट डेवलपमेंट इससे डिसरप्ट हो जाएगी. एज अ रिजल्ट द टूथ रिमेन्स unerupted even though there is no physical blockage and this condition is called as primary failure of eruption. PTH1R जीन की म्यूटेशन की वजह से हमारे पास प्राइमरी फेलियर ऑफ eruption आता है. ये जो जीन है हमारे पास PTH1R जीन, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है. ठीक है, तो दिस कैन कम ईदर फ्रॉम अ फादर और फ्रॉम अ मदर. ठीक है, हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं प्लस 22 पेयर्स आते हैं ऑटोसोम्स के. ठीक, तो ये ऑटोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है, ऑटोसोम में डोमिनेट कर रही होती है. ऑटोसोमल डोमिनेट मतलब बच्चे में आई तो दिक्कत देगी ही देगी. ठीक है, जिसमें क्लिनिकल इरप्शन ऑफ का फेलियर हो जाता है पूरी तरह से और कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देखी जाती यहाँ पे. नेक्स्ट, चाइल्ड प्रेजेंट्स विद नमनेस इन एक्सट्रीमिटीज, मल्टीपल अनइरप्टेड टूथ, वेग बोन पेन, जॉइंट स्टिफनेस, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन. दिस कैन बी फीचर्स ऑफ, ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के. ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले नमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, मल्टीपल अनइरप्टेड टीथ, वेग बोन पेन, जॉइंट स्टिफनेस, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशंस. ये सभी फीचर्स हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के. द प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इट कॉजेज हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू इंक्रीज्ड पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज. दिस इज मैनिफेस्टेड एज, जो हाइपरकैल्सीमिया है उसकी वजह से हमारे पास पुअर मसल टोन हो जाती है, डिक्रीज्ड न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स आर कॉमन क्योंकि अब हाइपरकैल्सीमिया ब्लड में बढ़ रहा है तो बोन में जो कैल्शियम का लेवल है कम हो जाता है जिसकी वजह से बोन में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बढ़ जाएंगे. बोन पेन ड्यू टू स्ट्रेस विल इंक्रीज, दे विल बी जॉइंट स्टिफनेस, there will be giant cell tumors or cysts in the jaws. Next, malocclusion with sudden drifting and spacing of the teeth will be seen. There will be generalized osteoporosis and nephrocalcinosis and peri and intra-articular calcifications mainly in secondary forms will be seen. Secondary form का मतलब है कि कहीं और पे दिक्कत है, किसी और ऑर्गन सिस्टम में दिक्कत है जिसकी वजह से नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो रहा है और पेरी और इंट्रा आर्टिकुलर कैल्सिफिकेशंस बन रही हैं. ठीक है, लेकिन दिक्कत कहीं और की है जिसकी वजह से ये दोनों सिस्टम भी इफेक्ट हो रहे हैं. दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ अ डिजीज. अगला क्वेश्चन इससे उल्टा है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय सर्कम ओरल नमनेस, हाइपोडोंशिया एंड टीथ विथ शॉर्ट रूट्स एंड ब्लंट एपेक्स. इसमें आता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. ऑलराइट, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेफिशिएंसीज इन पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. ठीक, इन चिल्ड्रन इट इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट एज हाइपोकैल्सीमिया इन द नियोनेटल पीरियड इन एसोसिएशन विद द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स. एग्जाम्पल डी गॉर्ज सिंड्रोम, DIGORGE सिंड्रोम एंड CATCH22, CATCH22. ठीक है, इसमें बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया हो जा रहा है, सर्कमओरल पैरास्थीसिया हो जाता है समटाइम्स इन द अर्लीस्ट साइन इज द अर्लीस्ट साइन. ठीक है, सर्कमओरल मतलब पूरे मुंह के अराउंड पैरास्थीसिया हो जाएगा. स्पैज्म ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस, spasm of the muscles of the face will be there, retention of primary teeth will be there, and there will be eruption delays or impaction of the teeth. There will be partial anodontia, मतलब कहीं जगह पे दांत होगा ही नहीं या फिर दांत कम होंगे नॉर्मल से, hypodontia. There will be impaired upper and lower jaw growth. उसके बाद alteration of facial dimensions will be there. There will be a shortfall of coordination between the lower jaw and which affects the development of dentition. मतलब coordination नहीं हो पाएगी lower jaw की growth की. Next, teeth with short and blunted roots will be there. There will be enamel hypoplasia and dentine dysplasia. Enamel hypoplasia और dentine dysplasia किसमें हो रहा है ये सब? Hypoparathyroidism. Hypo. Wide pulp chambers हो जाते हैं और pulpal calcifications बन जाती हैं उसके अंदर. Increase
risk of acute and chronic oral candidiasis is there that has also been reported due to the associated immunodysfunction. एसोसिएशन में क्या होता है कि हमारे पास सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी होता है जो कि PHP बोलते हैं जिसे, दैट इज़ अ रेयर डिजीज कैरेक्टराइज बाय हाइपोकैल्सीमिया with high level of parathyroid hormone due to parathyroid resistance in the target organs. मतलब बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन्स की रेजिस्टेंस हो गई है. नेक्स्ट, पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हमारे पास पल्प कैल्सिफिकेशन भी हो जाती है. हाई लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से पल्प कैल्सिफिकेशन. ब्लंटिंग ऑफ द रूट एपेक्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ रूट. ब्लंटिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ रूट वर सीन more commonly in premolars rather than any other type of tooth. Crowding of the lower anterior teeth will be seen. Crowding. There will be diastema in the upper arch. Midline diastema हो सकता है, lateral diastema हो सकता है. Class 3 malocclusion is there. Class 3 malocclusion can also be seen. मतलब नीचे वाली ठोड़ी जो वो आगे ग्रो कर गई है due to lack of coordination of lower jaw growth. Next, the blue pipe in the image shown below. In the bedside patient support system carries which gas? तो blue pipe में हमारे पास होती है nitrous oxide. Let's discuss the gas with pipeline color. ठीक है, with cylinder color. हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो होती है वो वाइट कलर की पाइपलाइन कलर होता है. वो ऑक्सीजन की हमारे पास जो पाइप है दैट इज़ वाइट. इसका जो सिलेंडर होता है वो ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है विद वाइट शोल्डर. नेक्स्ट आती है बात नाइट्रस ऑक्साइड की. नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर का पाइप होती है, ब्लू कलर का ही सिलेंडर होता है. मेडिकल एयर, इसमें वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स लगी होती हैं. ग्रे बॉडी होती है सिलेंडर की और ब्लैक एंड वाइट शोल्डर होता है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे कलर के पाइप में डिलीवर की जाती है और इसका सिलेंडर भी ग्रे कलर का होता है. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ब्लैक कलर के सिलेंडर में देते हैं. ब्लैक कलर की पाइप के अंदर नाइट्रोजन चली होती है. वैक्यूम, वैक्यूम सक्शन इज़ येलो. येलो पाइप इज़ वैक्यूम सक्शन. साइक्लोप्रोपेन, इसकी कोई पाइप का कलर नहीं होता लेकिन इसके सिलेंडर का कलर होता है ऑरेंज. हीलियम, हीलियम की पाइप का कोई कलर नहीं होता बट इसके जो सिलेंडर का कलर होता है हीलियम के ब्राउन. हीलियम इज़ ब्राउन. एंटोनॉक्स, एंटोनॉक्स ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड. मतलब एंटोनॉक्स में हमारे पास 3 चीज़ होती है. 50% ऑक्सीजन होती है, 50% हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड होती है. इसमें ब्लू बॉडी होती है सिलेंडर की और ब्लू एंड वाइट शोल्डर होता है. Next, which of the following is a resorbable suture material? Resorbable is polyglyconate. ठीक है, polyglyconate हमारे पास resorbable suture material आ जाता है. Polyamide is non-resorbable, polyester is non-resorbable, polypropylene is non-resorbable. जो absorbable suture होते हैं या फिर resorbable suture होते हैं वो 2 मेथड से ब्रेक डाउन होते हैं. उनका पहले का हो सकता है प्रोटियोलिसिस या फिर हाइड्रोलिसिस. प्रोटियोलिसिस अकर्स फॉर एग्जांपल इन कैटगट में प्रोटियोलिसिस होता है. हाइड्रोलिसिस हमारे पास वाइक्रिल और डैक्रॉन के अंदर होता है. वाइक्रिल इज़ पॉलीग्लैक्टिन, GLATCIN. पॉलीग्लैक्टिन इज़ वाइक्रिल. ठीक. और डैक्रॉन इज़ पॉलीएस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाइक्रिल 30. वाइक्रिल 30 इज़ व्हाट काइंड ऑफ सूचर? वाइक्रिल 30 इज़ रिजॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर. अगला सवाल है 0.45% NaCl इज़ व्हाट? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास. आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, कैन बी हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक. देखो हमारे पास 0.9% NaCl का सॉल्यूशन जो होता है दैट इज़ नॉर्मल सलाइन. तो इससे कंसनट्रेशन कम है तो दिस विल बी हाइपोटोनिक. ठीक है, इजी. नेक्स्ट, ऑल आर क्रिस्टलॉइड्स एक्सेप्ट. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें से 5% NDS नॉर्मल डेक्सट्रोज सॉल्यूशन इज़ a crystalloid. Ringus lactate is a crystalloid. Half normal saline is a crystalloid. HES is not considered as a crystalloid. HES is a colloid that is hexa starch और इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च बोलते हैं इसको. Theory: the IV fluids they can be crystalloids, solutions with small molecules that flow easily from the bloodstream into the cells and tissues. ये crystalloid का काम होता है. Effect is quick but transient. ठीक है, क्विक इफेक्ट होता है लेकिन धीरे धीरे इसका जो अब फ़र्क है वो बॉडी के अंदर फील होता है. दे कैन बी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक. आइसोटोनिक में हमारे पास आ जाते हैं जिसकी ऑस्मोलैलिटी 240 से 340 मिली ऑस्म पर केजी की होती है. 240 to 340 मिली ऑस्म पर केजी इज़ आइसोटोनिक. जिसमें हमारे पास D5 आ जाता है.
दैट इज़ 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन इन वाटर, NS आ जाता है, दैट इज़ नॉर्मल सलाइन, दैट इज़ 0.9% सोडियम क्लोराइड इन वाटर, डिस्टिल वाटर के अंदर होता है सब कुछ। और रिंगस लैक्टेट आ जाता है। रिंगस लैक्टेट में हमारे पास सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है, ये सारे आयंस होते हैं रिंगस लैक्टेट के अंदर। अब हाइपोटोनिक का मतलब कि 240 से जिसकी ऑस्मोलैलिटी नीचे चली गई वो होता है हाइपोटोनिक। एग्जाम्पल हाफ नॉर्मल सलाइन, हाफ नॉर्मल सलाइन का मतलब 0.45% नॉर्मल सलाइन, ठीक। उसके बाद हाइपरटोनिक की बात आती है। हाइपरटोनिक में हमारे पास ग्रेटर देन 340 मिलीऑस्म की ऑस्मोलैलिटी आती है, मतलब D5 अगर हम लेते हैं डेक्सट्रोज इन 0.45% सलाइन के साथ मिक्स कर देते हैं, मतलब डेक्सट्रोज, नॉर्मल डेक्सट्रोज अगर हम हाफ नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो हाइपरटोनिक बन जाता है, ठीक है। 3% सलाइन इज़ हाइपरटोनिक, क्योंकि 0.9% से तो बहुत ज़्यादा है। फिर आता है 10% डेक्सट्रोज। 10% डेक्सट्रोज भी हमारा हाइपरटोनिक होता है, बिकॉज नॉर्मल कंसनट्रेशन इज़ 5%, 0.5%, खाली 5% होता है, ओके। 5% डेक्सट्रोज ये होता है आइसोटोनिक, ठीक। अब नेक्स्ट आते हमारे पास बात आती है कॉलॉइड्स के बारे में। ये हो गई क्रिस्टलॉइड्स। अब कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, दैट पुल द फ्लूइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि फ्लूइड्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएंगे बल्कि ब्लड स्ट्रीम से पुल करेंगे चीज़ों को, ठीक है। इफेक्ट इज़ लॉन्गर लास्टिंग बट नीड्स क्लोज मॉनिटरिंग। कॉलॉइड्स में हमारे पास एग्जांपल आता है एल्ब्यूमिन, दैट इज़ 5% एल्ब्यूमिन इज़ आइसोऑस्मोटिक टू ब्लड प्लाज्मा। 5% एल्ब्यूमिन इज़ आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। इसके अलावा 25% भी दिया जाता है। अब 5% से ज़्यादा है तो ये दिस इज़ हाइपर ऑस्मोलर। नेक्स्ट कॉलॉइड है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन PPF। इसमें 83% हमारे पास एल्ब्यूमिन आता है और 17% ग्लोबुलिन आता है। 83% एल्ब्यूमिन, 17% ग्लोबुलिन अलॉन्ग विद अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स, दिस इज PPF, प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रान, ठीक है। उसके बाद आती है स्टार्च, हेक्सा स्टार्च, HES जिसको हम बोलते हैं, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च। ये सभी हमारे पास कॉलॉइड्स हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे कि कौन सा क्रिस्टलॉइड नहीं है, तो HES क्रिस्टलॉइड नहीं है, HES इज अ कॉलॉइड। Next, if you are a medical officer, treatment of iron deficiency anemia in mass population would be what? Treatment of iron deficiency anemia में you should give a combination of ferrous fumarate, folic acid, vitamin C plus B12, इन सब का combination mass population के लिए। For mass population, the preventive supplementation is a particular strategy that combines various micronutrient interventions. Accordingly, the effort should be intensively directed to this area. Programs that involve preparations containing iron, folic acid, vitamin A and vitamin C are directed to infants and children. It can also be directed to pregnant and lactating women. So, in सभी पेशेंट में हम ये दे सकते हैं combined approach to overcoming the micronutrient malnutrition, especially the deficiency of vitamin A and vitamin C, folic acid, iron and zinc should be emphasized in the foods so as to prevent iron deficiency anemia in the mass population. ये सारी चीज़ें एक साथ इसलिए दी जाती हैं क्योंकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है एनीमिया के करेक्शन के लिए। विटामिन C जो है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, विटामिन A आयरन की मोबिलाइजेशन को बढ़ाता है, फॉलिक एसिड प्लस आयरन ये दोनों मिलकर ड्यूअल कॉजेज़ ऑफ एनीमिया उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है उसको ट्रीट करने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। विटामिन A प्लस C प्लस जिंक ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनो एनहेंसमेंट करवाता है, ठीक। अगर रेगुलर रोल्स की बात करें तो विटामिन A हेल्प्स इन स्किन इंटीग्रिटी, एपिथेलियल इम्यूनिटी, विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इम्यून फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आयरन मोबिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आयरन की मोबिलाइजेशन स्टोर से करवाता है, जहाँ पे आयरन को स्टोर किया वहाँ से उसको उठा के जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा विटामिन A। आयरन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस अच्छे से होगी तो RBCs ढंग से बनेंगे, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और एनर्जी मेटाबॉलिज्म बॉडी का सही रहेगा। तीसरी बात आती है फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड DNA सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है और RBC की फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया,
ठीक। फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज़ ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। विटामिन सी जो होता है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। देखो आयरन Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में पहुंचाना होता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके बॉडी के अंदर। ये काम करता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट सपोर्ट्स इम्यूनिटी एंड कोलेजन फॉर्मेशन। इसके अलावा आती है जिंक की बात। जिंक इम्यून फंक्शन को इंक्रीज़ करता है, हीलिंग को इंक्रीज़ करता है, एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। सो इट विल सपोर्ट द ग्रोथ, एपेटाइट, टेस्ट एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी।